Good morning, class 7. Class 7, you know कि worksheet 5 I have started and question number 1 I have started, and here I am explaining how to do 7th part. Okay, so you can observe 2 by 5 whole power minus 1 multiply 3 by 4 whole power minus 1, and then this is whole power minus 1. And as I told you कि बेटे whole power को आपने सबसे last में use करना है. Here I can use the law. I think बेटे law सबको याद हो गए होंगे ना अब तो, कि जब भी आपके पास negative base है तो you can take the reciprocal and then you can convert into positive. Okay, so how we can use this law in this? I can write 5 by 2 multiply 4 by 3 whole power minus 1. Clear to everyone? Now, if cancellation is possible, we can do the cutting. So, what we are getting? Multiply numerator by numerator. We are getting 10. 10 by 3 whole power minus 1. And that is equal to 3 by 10 is the answer. Okay, so in this way you can use the law, but be careful students कि जब भी आप कोई लॉ यूज़ कर रहे हैं you have to write कि आपने कौन सा लॉ यूज़ किया है. And now I am explaining 10th part also. In 10th part it is given minus 1 by 2 whole power minus 3 divided by minus 1 by 2 whole power minus 4, और बेटे माइनस साइन सेंटर में है. सो दिस इज माइनस 1 by 2 होल पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय माइनस 1 by 2 होल पावर माइनस 6. Clear? This is the question. And now when you will observe, we can use the law. base देखो बेटे माइनस 1 by 2 है. ठीक है, पहले आपको बेटे यहाँ पे वैसे तो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो बाय द यूज ऑफ सेकेंड लॉ, बट हियर आई एम टेलिंग यू कि आपके पास जब भी नेगेटिव पावर हो यू कैन कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव आफ्टर टेकिंग द रेसिप्रोकल. तो कैन आई राइट दिस क्वेश्चन एज माइनस 2 रेज टू द पावर 3 अपॉन माइनस 2 रेज टू द पावर 4 माइनस 2 रेज टू द पावर 5 माइनस 2 रेज टू द पावर 6. ठीक है ना बेटा, नेगेटिव पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई. अब सेम क्वेश्चन वी हैव डन इन प्रीवियस वर्कशीट ऑल्सो. अब हम बॉक्स बनाएंगे, पेंसिल से बनाना बेटे. तो आप इन दिस वी कैन यूज द सेकेंड लॉ एंड सेम इन दिस ऑल्सो वी कैन यूज द सेकेंड लॉ. सो बाय द यूज ऑफ सेकेंड लॉ वी कैन राइट माइनस 2 रेज टू द पावर 3 माइनस 4 minus of minus 2 raised to the power 5 minus 6. Okay, so what we are getting? Minus 2 raised to the power minus 1 minus of minus 2 raised to the power minus 1. अब फिर से बेटे जब नेगेटिव पावर होगी तो हाउ वी कैन कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव? वी कैन टेक द रेसिप्रोकल minus and again we will take the reciprocal. Okay, so whenever outside negative is there we can convert into positive. Same digit, one is with plus, one is with minus, cancel, so answer is 0. So in this way you can complete the rest of the parts. Very easy but need of practice. Okay, so now I am explaining question number 2. In question number 2 it is given, by what number should we multiply 2 raised to the power minus 5 so that product may be equal to 2 raised to the power minus 1. Okay, so now in this it is given कि 2 रेज टू द पावर माइनस 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर आए 2 रेज टू द पावर माइनस 1. क्लियर? सो दिस इज द क्वेश्चन. पहले बेटे क्वेश्चन फ्रेम करना सीखना है आपने. तो क्वेश्चन आ गया ना कि 2 रेज टू द पावर माइनस 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर आए 2 रेज टू द पावर माइनस 1. अब बेटा जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन में जब कोई डिजिट हमारे पास मल्टीप्लाई होता है तो दूसरी साइड में आके वो क्या हो जाता है? डिवाइड. तो हमने ए को यहाँ छोड़ा
2 की पावर -1 और ये मल्टीप्लाई है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड 2 की पावर -5। देखो ना, तो अभी बेस चेंज हुआ ना पावर चेंज हुई, सिर्फ ये मल्टीप्लाई का साइन इधर आकर डिवाइड हो गया। एंड नाउ इन दिस वी कैन यूज द सेकेंड लॉ, तो यू कैन राइट x रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर n is equal to x raised to the power m minus n, right? So we can write 2 raised to the power -1 minus of -5. So this is equal to 2 raised to the power -1 plus 5. This is 2 raised to the power 4. And you know na, the meaning of 2 raised to power 4 is 16. So you can write your answer in exponent as well as in power form. Okay. So this is how we have to do our second question. And now we are coming towards question number 3. So question number 3 is, by what number should -1 by 5 whole power -1 be multiplied so that the product may be equal to this number? So question is same. Will you try this? Yes, you can. So you can write, this is your HW. Okay. So now question number 4 is, by what number should 24 होल पावर -1 भी डिवाइडेड? हमने कहा हम a से डिवाइड करेंगे सो डैट द कोशेंट में बी इक्वल टू 4 रेज टू द पावर -1. ओके, हमने कहा 24 रेज टू द पावर -1 को किस नंबर से डिवाइड करें कि आंसर आए 4 रेज टू द पावर -1. अब देखो बेटे, यहाँ पे हम इसको प्रॉपर सिंप्लीफाई करके दिखाएंगे. 1/24. बेटे अगर इस डिवीज़न को मुझे मल्टीप्लाई सॉल्व करना है तो कैन आई राइट लाइक दिस? मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, रेसिप्रोकल ले लिया एंड दिस इज 1/4. अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से किया तो 1, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से किया तो 24a डैट इज इक्वल टू 1/4. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ताकि दोनों टर्म्स न्यूमिनेटर में आ जाएं. So we are getting this, and then a is equal to 4/24. Cancel कर दो, then a we will get 1/6. Clear to you beta? So question 4 is also clear, and now question 5 is also similar to this. You can try this. Okay, I am telling question 5 also. So now in question 5 the concept is same कि वी आर हैविंग -2/3 होल पावर 3. वो कह रहा है इसको किससे डिवाइड करें सो डैट द क्वेश्चन मे बी इक्वल टू दिस. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन. हमने कहा कि -2/3 होल पावर 3 को अगर हम a से डिवाइड करें देन द क्वोशेंट कहते हैं बेटे जो डिवाइड करके आता है ना हमारे पास. जैसे हम डिवाइड करते हैं तो ये होता है हमारा डिविडेंड, ये होता है हमारा डिवाइज़र और यहाँ पे आता है हमारे पास क्वोशेंट. ठीक है, यानी आंसर जो हम निकालते हैं. तो नाउ अगेन वी विल सिंप्लीफाई दिस इन अ सिमिलर वे. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे क्योंकि सेम बेस नहीं है तो लॉ नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे इसको ओपन करते हैं. माइनस साइन ऑड पावर वी विल गेट -2 रेज टू द पावर 3 इज 8, 3 रेज टू द पावर 3 इज 27. हमने इस डिवीज़न को मल्टीप्लाई में किया, रेसिप्रोकल ऑफ दिस, एंड नाउ वी विल कन्वर्ट दिस नेगेटिव पावर इनटू पॉजिटिव आफ्टर टेकिंग द रेसिप्रोकल. ठीक है बेटा जी. नाउ अगेन -8/27a, 4 स्क्वायर 16, 9 स्क्वायर 81. अब ये निकालना है ना बेटे, तो a को शिफ्ट करना है हमें. -8 मल्टीप्लाई 81, 16 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई a, राइट. तो a को सॉल्व करना है -a इंटू 81 अपॉन 16 इंटू 27. 27 का बेटे अगर टेबल आता है तो 27 3 इज 81, 8 1 8 2 सो a इज इक्वल टू -3/2 इज द आंसर. ओके बेटा, तो जब बेटा आप अपने हाथ से भी ट्राई करोगे तो बहुत ईजिली समझ में आएंगे. कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में, सिर्फ आपको लॉ आने चाहिए एंड देन यू शुड नो कि हमने एक साइड से दूसरी साइड कैसे लेके जाना है बेटा. ठीक है,
एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अब बेटे हमने x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है. तो हाउ वी कैन राइट क्वेश्चन नंबर 6 इज, दिस इज 3/4 whole power minus 9 multiplied by 3/4 whole power minus 7 is equal to 3/4 whole power 4x. ये क्वेश्चन है बेटे हमारे पास 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. ओके, एंड नाउ व्हेन यू विल ऑब्जर्व, क्योंकि बेटे हमें लॉज से x की वैल्यू निकालनी है तो सिर्फ लेफ्ट साइड को फोकस करेंगे. सेम बेस, पावर इज डिफरेंट, मल्टीप्लाई है तो वी कैन यूज द फर्स्ट लॉ. -9 + -7 इज इक्वल टू 3/4 होल पावर 4x. कैंसल हो गया. -9 - 7 इज इक्वल टू 4x. 4x is equal to -16 and x is equal to -4. So in this way you can try the rest of the part of 6 question very easily. You are able to do 4 parts are there. So today you have to complete up to question number 6 all the part. Is it clear beta? Okay, thank you.